Hello everyone, in this video we'll be talking about interpretation of statutes, deeds and documents. ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है जो बड़ी क्लास थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की अराउंड 4.5 आवर्स 5 आवर्स. उसको मैंने यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसे 35-40 मिनट्स में सब कुछ आपके रिवीजन के लिए कंप्रेस कर दूं. सबसे पहले इस वीडियो में हमें यह टारगेट रखना है कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे जाएं. इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम होता है, यू अंडरस्टैंड ऑल एग्जांपल्स बट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कंपनी लॉ में आंसर्स याद करना इजी होता है बट इट इज डिफिकल्ट टू राइट द आंसर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट. तो वेरी सून हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को भी टारगेट करेंगे पर अभी हमारा नेक्स्ट 45 मिनट्स पूरा ध्यान इस चैप्टर पर रहने वाला है. ओके, सबसे पहले इफ यू सी योर बुक्स या स्क्रीन्स जो भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम एक एक करके प्राइमरी रूल्स को उठाएंगे. Then we will go to the secondary rules. The first important primary rule, if you see your notes too, is the rule of literal construction. ध्यान से सुनना, आप अपने नोट्स को रेफर करते रहना. अभी मेरे नोट्स पर सिर्फ पढ़ने पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, स्क्रीन पर आ रहा है. So when the language used in the statute is plain, language सुनो, clear, unambiguous and only one meaning can be derived, then the dictionary, literal, grammatical meaning should be adopted. This is the golden rule, the rule of literal construction. That when the language is clear, plain, there's no doubt, no ambiguity, then only one meaning should be used, and that one meaning is the dictionary meaning, the grammatical meaning. हमें तब beyond law देखने की, letter of words देखने की दरकार ही नहीं है. This is the first step we usually take, the rule of literal construction. अब इसके आंसर में यहां तक तो सब लिख के आ जाते हैं बट अब पॉइंट नंबर 2 जैसा आप देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 3 ये आपको अपने आंसर्स में डालना होगा. अगर आप सिर्फ पहले 2 लाइंस को डालेंगे तो आपको 5 में 1.5 मिलेगा. सर मुझे 5 में 5 चाहिए, तो पॉइंट नंबर 2, अ वर्ड मे हैव अ पॉपुलर मीनिंग और अ टेक्निकल मीनिंग. So a word may have both type of meanings, popular meaning or a technical meaning. मैं समझाऊंगा. But the word should be interpreted in the context in which it is used. वापस सुनिए, जब आंसर लिखो तो ये लैंग्वेज आंसर में आना चाहिए. A word may have popular meaning, a word may have technical meaning, but that meaning should be adopted according to the context in which it is used. Example number 1. There was a law which said that vegetables will be exempted from sales tax. So the question arose whether sugarcane is a vegetable and it should be exempted from sales tax. The question arose whether betel leaves is a vegetable and should be exempted from sales tax. So if we go according to the technical botanical meaning, then sugarcane and betel leaves are vegetables. Even coconut may seem to be a vegetable if we go according to the technical meaning. But the courts adopted in the case of Motipur Zamindar versus State of Bihar and Ramnath versus Assistant Sales Tax Commissioner. In these cases, नाम अगर याद नहीं हो, in leading cases भी लिख सकते हो. In leading cases, courts adopted that the word vegetables in this case is not considered by their technical and botanical meaning, rather in their popular meaning. What is the popular meaning? If you are having in your lunch and dinner that vegetable, if you can grow in your kitchen garden like adrak, nimbu, mirch, then it is a vegetable and then it is exempted from the tax. You don't grow coconut in your vegetable kitchen garden. You don't grow sugarcane. आप उस गन्ने को lunch dinner में खाते नहीं हैं. मतलब that is not your main diet. So therefore they are not considered as vegetable. तो ये एक अच्छा example है. Sometimes a word is given its popular ordinary meaning and not the technical meaning. एक और example, sometimes a word is given its technical meaning. Example, जब हम लोग practice word use करते हैं, practice in various acts, तो हम उसका technical meaning देखते हैं, the lawyer who acts and pleads on behalf of the client. तो कई बार हम technical meaning देखते हैं. Person की technical meaning हम देखते हैं कई बार various acts में. पर्सन का डेफिनेशन दिया रहता है, इट इंक्लूड्स आल्सो आर्टिफिशियल पर्सन. हम उसके नॉर्मल मीनिंग को देखेंगे, ऑर्डिनरी मीनिंग को देखेंगे तो पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, बट कई बार आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर्ड रहता है. तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के आंसर में आपको दोनों चीज आंसर में लिखना पड़ेगा. दैट समटाइम्स अ वर्ड इज गिवन
it's technical meaning, sometimes it's popular meaning, depending on the context in which it is required. इसका best example, a word like security may have three meanings. एक तो देश की security, एक हो सकता है against loan was given to someone and I'm providing security for that loan. Thirdly, security, if I'm talking in the context of security laws, the word security means your stock, shares, bonds, debentures, etc. तो ये चीज आंसर में आना चाहिए. तो टू सम इट अप, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के आंसर्स में लोग से पहले लिख के आते थे, when the language is clear, plain and unambiguous, then only one meaning can be derived and then that one literal dictionary meaning should be adopted. But अब आप आंसर में लिखोगे, a word may be given sometimes a technical meaning or a popular meaning depending on the context in which it is used. This is very important. I have given you 3-4 examples. Technical वाले answers भी मैंने meaning वाले examples भी दिए हैं, dictionary और popular meaning वाले examples भी मैंने आपको दिए हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एक बहुत फेमस लैटिन फ्रेज है, एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया. दिख रहा है ये? इसका मतलब क्या है कि जब कोई लॉ में कुछ लिखा होता है, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा, हम मतलब कोर्स उसमें कोई एक्स्ट्रा मीनिंग इंसर्ट नहीं कर सकते ऑन द अजम्पशन की साइलेंट है तो ये मीनिंग है. सर मैं समझा नहीं. एक एग्जाम्पल सुनिए. आप सुनते हैं सेक्शन 118 ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां पे टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग लिखा रहता है, टाइम ऑफ साइनिंग द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग लिखा रहता है. हाँ सर मैंने सुना है. उसमें जनरल मीटिंग का भी है, उसमें टाइम ऑफ साइनिंग, टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बोर्ड मीटिंग मिनट्स भी लिखा हुआ है, बट उसमें टाइम ऑफ साइनिंग द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं लिखा हुआ है. तो कोर्ट्स के नॉट इंटरप्रेट कि सब 30 डेज आ रहे थे तो इसको भी 30 डेज कर दो. यू कैन नॉट एक्सपोर्ट वर्ड्स टू द स्टैट्यूट. यानी ओमिशंस, अगर कुछ एक्ट से कुछ चीज साइलेंट है या ओमिट है तो ओमिशंस को आप अपने आप उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकता कोर्ट. ये था एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट. ये रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पूछने का और एक स्टाइल है, जहां मैंने कुछ डिक्टेशन भी दिया था आपको. स्टार्ट रीडिंग. लिखा हुआ देखो, when a matter should have been but has not been provided in a statute, it cannot be supplied by courts so that it would amount to legislature. Matters should have been written but has not been provided in a statute, it cannot be supplied by courts to that कि अपने आप लॉ बन जाए. कि कोई चीज अगर omitted है, we cannot, the courts cannot supply the meaning of those omissions. कि हाँ omitted है पर ये meaning होगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें हम लोग सीखे हैं. एंड एक फोर्थ पॉइंट, लिटरल कंस्ट्रक्शन में बोला जाता है कि कई बार हम चीजों का वाइडर मीनिंग अडॉप्ट करना भूल जाते हैं. फोर्थ पॉइंट जो आंसर में आना चाहिए. तो कई बार नैरो मीनिंग भी अडॉप्ट होता है. मैंने उसके एग्जांपल्स दिखाए थे. बुक्स में वाइडर मीनिंग के एग्जांपल्स लिखे हुए थे कि सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट में जब हम लोग बोलते हैं क्या कोई डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी का इंटरेस्ट अगर है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्कस होने वाला डिस्क्लोज करना चाहिए. तो एक डायरेक्टर ने क्या किया, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं डिस्क्लोज कर देता, पर मेरे रिलेटिव का इंटरेस्ट था तो मैं डिस्क्लोज नहीं किया. रिलेटिव का इंटरेस्ट है तो भी डिस्क्लोज करना चाहिए था. सो ब्रॉडर सेंस में इसको अडॉप्ट करिए. और एक चीज, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कई बार एमसीक्यू या घुमा के क्वेश्चन पूछता है इन्वर्टेड कॉमास में, एग्जैक्ट मीनिंग टू बी प्रेफर्ड ओवर लूज मीनिंग. ये भी तब समझ जाना रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. या वो एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया वाला भी समझ जाना रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. तो 5 इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए. नाउ द सेकंड वन, हर बार डिक्शनरी मीनिंग सही नहीं है. तो इफ द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस एंड द लिटरल इंटरप्रिटेशन, अगर हम सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग करेंगे अडॉप्ट तो वो एक एब्सर्ड रिजल्ट देगा. तो ऐसे सिचुएशन में एक सेंसिबल मीनिंग शुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ रीजनेबल व्यू पॉइंट ऑफ अ रीजनेबल मैन. तो दैट इज द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. और इसमें अट्रेस मजीज वेलिएट क्वेम पेरियड, ऐसे भी एक क्वेश्चन आता. मैंने गंदा टेक्निक सिखाया था. मजीज देखकर मैगी का कॉन्सेप्ट याद आता है और मैगी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे मिलता है. सो द रूल्स नेम इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था. एक एक्ट में लिखा था, एंटी करप्शन लॉ था कोई, ब्राइब्स कैन नॉट बी गिवन इन कैश, सो इट मींस इट आल्सो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन काइंड. ओके, तो याद रखिएगा. एक मैंने बोला, नो स्टूडेंट विल ब्रिंग मोबाइल फोन एंड वॉच यूट्यूब ड्यूरिंग द क्लास. एक स्टूडेंट आईपैड ले आया और यूट्यूब देखने लगा. ये भी आपको इंटरप्रेट उसी एंगल से करना होगा कि ऑफ कोर्स आईपैड भी फिर लाना मना था. उसी तरह हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम में
हमें बहुत रीजनेबली इंटरप्रेट करना चाहिए चीजों को। फिर एक और एग्जांपल कंपनी लॉ का देखा था, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग। तो प्रॉक्सी क्या किया पता है, वो कागज के रॉकेट्स बना बना के चेयरमैन के कान में मारने लगा, बोला व्हाट आर यू डूइंग, I cannot speak but I can give my views in writing। बोला shut up, क्योंकि हमें जब लिखा हुआ है cannot speak, तुम literally देख रहे हो, cannot speak का मतलब है you cannot present your views in any mode। So this is the rule of reasonable construction। तो शुरुआत कैसे करना था, when the language is ambiguous, literal interpretation would give an unreasonable result, then the courts adopt that meaning which gives a sensible meaning to this intention, आखिर हमें पता चल सके। The next law, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो जब भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली पहला लाइन लिखना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आंसर के स्टार्टिंग पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? इंग्लिश सुनो, व्हेन देयर आर two or more, English सुन रहे हो, conflicting provisions in the same statute, then the courts must adopt the meaning in such a way to find out the real intention by reconciling the conflict। Language सुना, कॉन्फ्लिक्ट रियल होना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए हम रिकॉन्साइल कर सके। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। मैंने एक पुराना कंपनीज एक्ट 1956 में भी एजीएम के टाइमलाइंस उस समय अलग अलग सेक्शंस में रहते थे, वो एग्जांपल भी दिया। फिर मैंने सेक्शन 179 186 का दिया, और एक अच्छा एग्जांपल, इजी एग्जांपल मैंने जो दिया था, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एक जगह लिखा है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, और एक जगह लिखा है पार्लियामेंट कैन अमेंड बट देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे जो आपको आंसर्स में लिखने चाहिए थे, और ये जरूरी भी है। देखो, एक्ट इज पास्ड एज अ होल, एक्ट इज नॉट पास्ड इन पार्ट्स। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमें एज अ होल एक्ट को पढ़ना चाहिए, हार्मोनी स्टैब्लिश करके। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन, इसके 4 नाम है, mischief rule, Hayden's rule, beneficial construction, purposive construction। इसकी लैंग्वेज ध्यान से सुनना। When the language is ambiguous, capable of more than one meaning, then the court, English ध्यान से सुनना, court must adopt that meaning, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, which advance the remedy, suppress the mischief। सर क्या भयानक भारी भारी शब्द बोल दिया आपने। Look here on the screens, यहां पर एक इंग्लिश केस लॉ का मैंने बताया था। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स क्या कर रही थी, बालकनी से अपने कस्टमर्स को आवाज देती थी, और क्योंकि लॉ आ गया था, पहले तो लोग सड़क पर आके करती थी, लॉ आ गया था कि इन लोग पूरा सोसाइटी में एम्बियंस खराब कर दी है, सड़क पर जा जाके इस टाइप का बिजनेस कर रही है, तो बालकनी से जब करने लगी तो भी वो गलत था। तो उन लोग बोलती थी बालकनी से हम कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन थोड़ी कर रहे हैं, लॉ में बोला था पब्लिक प्लेस पे मुझे नहीं करना, हम तो अपने घर के बालकनी से कर रहे हैं। हियर द वर्ड बालकनी वाज गिवन अ वाइडर मीनिंग, और मिसचीफ रूल को अडॉप्ट करके बोला गया कि ये गलत कर रही है, बालकनी भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको मैंने लर्न करने बोले थे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 4 मैटर्स क्या कंसिडर किए जाते हैं कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, इसके पहले कोई लॉ था क्या, नहीं था सर। व्हाट वाज द मिसचीफ व्हिच लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, या पहले लॉ में कुछ कमियां क्या थी, नया लॉ क्या रिमेडी लेकर आया है, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रिमेडी। लर्न वर्ड टू वर्ड दीज 4 क्वेश्चंस। एग्जाम में आता है दैट व्हाट 4 क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग द मिसचीफ रूल। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द मिसचीफ, पुराने लॉ में नहीं था, इस टाइप की चीजें। तो ये तो प्रैक्टिस करना होगा, पर ये 4 क्वेश्चंस मैं इसमें हैमर कर रहा हूं रिवीजन में, ये वर्ड टू वर्ड आपको चाहिए। इसी में मैंने और एग्जांपल दिखाया था आपको, ये अबॉर्शन वाला एग्जांपल दिखाया था, एंड दीज 2 कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो अबैंडन्ड कैटल होते हैं ना, जो लोग कैटल राजस्थान और एरिया में ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट सब पकड़ के ले जाएगा। एक आदमी ने अपने कैटल का ध्यान नहीं रखा, उसका कैटल निकल गया रास्ते में, तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। तो वो आदमी बोलता है मैंने छोड़ा नहीं अपने कैटल को, बस ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, निकल गया था, मेरा वापस दीजिए। गवर्नमेंट बोला तुम अगर ध्यान नहीं दे रहे और तुम्हारा निकल जा रहा है, वो भी अबैंडन्ड कैटल के दायरे में आएगा। तुम बस सोचिए अबैंडन्ड कैटल मतलब जिसका मालिक छोड़ दिया हो हमेशा के लिए, या ऐसे ही खुला, मैंने छोड़ा नहीं सर, ये भी छोड़ा हुआ ही माना जाएगा। तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स हमने यहां पर देखा था। नो इट्स फाइन। उसी तरह हमने रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी देखा था, जो कई बुक्स में मिसचीफ एंड बेनिफिशियल आर सेम, सीए के बुक्स में इसको अलग अलग इंटरप्रेट किया गया है। बोला जा रहा है कि यहां पर स्पेशली लेबर लॉज को जब इंटरप्रेट करते हैं तो हमारा इंटरप्रिटेशन करने के समय झुकाव टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ लेबर्स रहता है। तो यह एग्जांपल मैंने दिया था।
और हमेशा लॉ पढ़ते वक्त हमें यह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इंटेंशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, लॉ में एक जगह लिखा हुआ है एन एक्ट कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल और ही कैन गेट इट डन थ्रू एन एजेंट. तो अगर आप एजेंट से कुछ काम करवाते हैं तो माना जाएगा प्रिंसिपल ही किया है. तो ये रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के कई एग्जांपल्स थे कि एक्सटेंडेड मीनिंग अडॉप्ट करने बोलता है. फिर मैंने कुछ डिक्टेशंस भी दिए थे. इनफैक्ट बेनिफिशियल रूल में मिसचीफ रूल भी लिखे हैं तो भी चलता है. एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ लेबर वेलफेयर लॉज विच आई डिस्कस्ड विथ यू. आफ्टर दिस, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. सर ये मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस ये सब क्या है सर? इसमें दो चीजें हमने देखी थी. मैंडेटरी प्रोविजन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए होता है. वर्ड सुनो, एग्जाम में आया हुआ है. व्हाट इज द यूज ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन? मैंडेटरी प्रोविजन रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस. डायरेक्टरी प्रोविजंस हैव टू बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद बट नॉट अ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस. सो व्हेन इज द वर्ड मे read as shall? When a power is given and it is coupled with duty. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब मैं कोई शब्द में है और जहां जिसको नॉन कंप्लायंस करने से पेनल्टी लग जाएगा, इट इज रेड एज शैल. ओके. एंड बहुत सारे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं. तो यहां पर मैंने कई एग्जांपल लिया था सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, जहां मे वर्ड वाज रेड एज शैल. उसी तरह शैल इज ऑल्सो रेड एज मे. यहां पे शैलेश हरेलाल शाह वर्सेस मतुश्री टेक्सटाइल्स, जहां पे लेंथ ऑफ नोटिस अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की हो तो भी मीटिंग वैलिड हो सकती है अगर कोई प्रेजुडिस शेयर होल्डर्स को कॉज नहीं हुआ है. तो शैल भी कई बार मे की तरह यूज होता है. कई बार मे यूज होता है एज अ कन्वेंशनल कर्टसी व्हेन केसेस व्हेन एनसीएलटी या गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट में यूज करते हैं. और कई बार शैल यूज होता है कोई सेक्शन में और गवर्नमेंट बॉडीज वहां कुछ करने वाली होती है, पर शैल को फिर मे की तरह ट्रीट किया जाता है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स और हमने कई बार इसको पढ़ा है. एंड एन और कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स के बारे में भी हमने देखा था. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल नाउ. ओके. द नेक्स्ट वन, रूल ऑफ एजुस्डिम जेनरिस. इसमें 4 पॉइंट्स है, ध्यान से देखो. डॉग, कैट, काउ, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स. So when specific words are used in a statute, next line बहुत important है, belonging to the same category, and after the same category वाले specific words, a general word is used other animals, then other animals will also derive its meaning from the specific words used earlier, यानी domestic animals को belong करेंगे. पर सर इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? डॉग, मंकी, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामस एंड अदर एनिमल्स. यहां पे स्पेसिफिक वर्ड्स थे, सारे अलग अलग जीव जंतु को बिलोंग कर रहे थे. सो आई कैन नॉट अप्लाई द रूल ऑफ एजुस्डिम जेनरिस, क्योंकि एजुस्डिम जेनरिस के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स तो दिख रहे हैं तुमको. तुम ऐसे पढ़ के जाते हो, हाँ सर स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड एंड आफ्टर दैट व्हेन जनरल वर्ड्स आर यूज्ड द जनरल वर्ड्स विल डिराइव specific words belonging to the same category is an important phrase, and then the general word is used, then the general word will also derive its meaning from the specific words used earlier. यानी general word एक बड़ा शब्द था पर उसको हम एक नैरो मीनिंग दे देते हैं टू द प्रीवियस कैटेगरी. तो कई बार एग्जाम घुमा के भी आया हुआ है कमेंट, वी अडॉप्ट अ नैरो मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड यूज समटाइम्स. तो दिस इज इनडायरेक्टली द रूल ऑफ एजुस्डिम जेनरिस. और ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, एमसीक्यू में कंफ्यूज कर देगा. सर नैरो मीनिंग क्या है, ये क्या है? अदर एनिमल्स था, बड़ा वर्ड था, पर उसको हम डोमेस्टिक कैटेगरी एक नैरो मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं अगर ऊपर वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो, बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी. उसी तरह यहां पर एक दो वर्ड्स और आया है, जैसे कि इफ वन जनरल वर्ड फॉलोज वन पर्टिकुलर वर्ड देन द रूल विल नॉट अप्लाई. मुझे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी यूज करना पड़ता है, एंड देन दैट हैपेंस. इफ वन जनरल वर्ड इज यूज्ड फॉलोइंग वन पर्टिकुलर वर्ड देन दिस रूल डजंट अप्लाई. जैसे कि एक एक्ट में लिखा था A police officer or an authorized officer will do this work. I cannot apply adjustum generis क्योंकि एक ही specific word था. तो ये भी कई बार लिखना पड़ता है. और कई बार general word आता ही नहीं है, only particular words are used and it exhausts the whole category. Then the general word अपना general रहेगा. मतलब कि teacher called Amit, Rohit, Mohit, help me. बस खत्म कहानी. I cannot apply the rule of adjustum generis. मैंने और examples भी यहां पर दिए थे. You must have read, you must have done. तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं. एजुस्डिम जेनरिस में हम एक नैरो मीनिंग अडॉप्ट करते हैं ऑफ द जनरल वर्ड्स यूज, स्टेटमेंट सही है. और पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस कैटेगरी, इसका मतलब भी मैंने बताया कि मैंने कोई जनरल वर्ड यूज ही नहीं किया, सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड्स ही यूज किया है. देन द जनरल वर्ड्स आर टू बी कंस्टिट्यूड कवरिंग अ लार्जर जीनस. ओके.
उसी तरह अब हम लोग गए थे सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, जहां पर एक नाम था एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूशिया अल्टीरियस, यानी कि व्हेन वी एक्सप्रेसली मेंशन वन थिंग इन लॉ इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर्स। जैसे कई बार हम लोग लिख देते हैं ये मैटर एजीएम में डिस्कस करना है तो सिर्फ एजीएम में करना है, अगर हम लिख देंगे मैटर जीएम में करना है देन किसी भी जीएम में हो सकता है, बट व्हेन वी एक्सप्रेसली राइट दिस मैटर शुड बी डिस्कस ओनली एट बोर्ड मीटिंग, तब फिर वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता है। वैसे आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ये मैटर सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, तो सिर्फ फिर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहेगा, बिकॉज देयर आर सम आर्टिकल्स व्हिच आर अवेलेबल, बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। उसी तरह यहाँ पे नॉकिस्टर कॉकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसमें ना एजुस्डिम जेनरस समझने लगते हैं। फुल पेज करिएगा, मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं। लेआउट या रेडी डीके जी। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉकिस्टर कॉकस, जिसको मैं थोड़ा अलग ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूं, इज ब्रॉडर देन एजुस्डिम जेनरस। इस पे भी एमसीक्यू या कमेंट आ जाता है, नैरोअर है या ब्रॉडर है, तो लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए। The word derive its meaning layout from associate words used earlier or later. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे एजुस्डिम जेनरस में पहले पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड हुए अर्लियर बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी एंड देन द जनरल वर्ड केम। यहां पर अर्लियर और लेटर दोनों शब्द है, फुल पेज याद रखिएगा, एंड इट इज अ ब्रॉडर देन एजुस्डिम जेनरस। जैसे राहुल्स हैंडबैग में ये चीज कंटेन है, देखो सारे ही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। यहां पे कि ऑयल शब्द का मीनिंग कैसे निकलेगा, ऑयल शब्द का मीनिंग या हेयर ऑयल से रिलेटेड है। रिमेंबर, लुक एट द वर्ड्स एवरीवन, ध्यान से देखिए। लेआउट, इज इट ओके? तो ये याद रखिएगा, यानी एजुस्डिम जेनरस एंड नॉकिस्टर कॉकस, कई बार तो ये भी बोला जाता है कि एजुस्डिम जेनरस नॉकिस्टर कॉकस से निकला है, ये उससे ब्रॉडर है, एजुस्डिम जेनरस से ब्रॉडर है। ये लैंग्वेज ध्यान से प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके करना, जो भी करना। उसी तरह एक ये वाला आता है एग्जाम में, ऑप्टिमे लेगी इंटरप्रेट, मतलब कि बेसिकली यूसेजेस के ऊपर ये बेस था। यूसेजेस एंड कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, कि कुछ बिजनेस में कस्टम्स एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस से आपको लॉ का सोर्स पता चलता रहता है, स्पेशली इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट इफ यू सी। एंड एक और चीज है इसमें कि सपोज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1860 था, ये दूसरा एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कि उसमें लिखा था पोस्ट ऑफिस इज नॉट लायबल फॉर द लेटर्स सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, अगर टाइम से डिस्पैच ना हो। तो अगर स्पीड पोस्ट से आज के दिन भेजा जा रहा है उसके लिए क्या पोस्ट ऑफिस लायबल है? आप बोलेंगे नहीं, पोस्ट ऑफिस इज नॉट लायबल फॉर द लेटर सेंड थ्रू पोस्ट लिखा हुआ था। अब 1860 में पोस्ट में सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट कवर था, तब स्पीड पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पीड पोस्ट के लिए रिलीफ नहीं है, क्योंकि लॉ क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ओल्ड लॉज शुड बी इंटरप्रेटेड एज दे वुड हैव बीन एट द टाइम व्हेन दे वर एनैक्टेड। मैं लैंग्वेज वापस बोल रहा हूं, old laws should be interpreted as they would have been at the time when they were enacted. Is it okay? तो उस समय जब स्पीड पोस्ट नहीं था तो उस समय आपको स्पीड पोस्ट से रिलीफ वाली बात भी नहीं मिल सकती। तो ये सब लैंग्वेज पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब से फिर से अपने को तैयारी करना चाहिए। चलिए, सेकेंडरी सोर्सेज भी हो गए। नाउ इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट टाइटल, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 एक शॉर्ट टाइटल है। लॉन्ग टाइटल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। लॉन्ग टाइटल इज एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट समटाइम्स। प्रीएम्बल, ये स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। लैंग्वेज ध्यान से देखो, पॉज करना घर में। इट एक्सप्लेन्स द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस कॉम्प्रीहेंसिवली, विस्तार पूर्वक, इवन देन द लॉन्ग टाइटल। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त कई प्रीएम्बल्स के एग्जाम्पल दिए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये उसके प्रीएम्बल से उसके ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। बट रिमेंबर, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हेडिंग्स एंड टाइटल्स ऑफ चैप्टर कंपनीज एक्ट में तो कई हेडिंग्स है, जैसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिटर्स, इससे पता चल जाता है कि आने वाले बंच ऑफ सेक्शंस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं।
मार्जिनल नोट्स समरी की तरह यूज होते हैं, बट दे आर नॉट यूज फॉर इंटरप्रेटिंग द एक्ट। पर एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मार्जिनल नोट्स कई बार जो आर्टिकल्स में अपेंडेड रहते हैं, दे हैव बीन हेल्ड टू बी यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग एंड दे आर हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशनल सेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, कई डेफिनेशंस में मीन्स, इंक्लूड्स, ये सब लिखा रहता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, तो मीन्स का क्या यूज है, इंक्लूड्स का क्या यूज है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद इलस्ट्रेशंस, कई बार एक्ट के अंदर इलस्ट्रेशंस होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इलस्ट्रेशंस आर पार्ट ऑफ द एक्ट, but they cannot modify the language of the act. They can neither curtail nor expand the ambit of section. बस जो लिखा है उसको समझा रहे हैं उदाहरण के द्वारा। प्रोवाइजो क्लॉज बेसिकली लॉ में कुछ चीज जो पहले दिया हुआ है, कई बार उसका एक्सेप्शन होता है। वो इट इज एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन टू विच इट इज अ प्रोवाइजो। पर उसके अलावा फुल पेज करो, हमने देखा था जैसे प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में वो 200 होते हैं ना प्राइवेट कंपनी मेंबर्स, बट प्रोवाइडेड दैट व्हाइल काउंटिंग 200 कौन कौन एक्सक्लूडेड है वो वहां पर दिया हुआ है। कई बार प्रोवाइजो एक्सेप्शन के रूप में यूज नहीं होता है, बल्कि इट इज यूज फॉर एडिंग सम एडिशनल पॉइंट्स फॉर इलैबोरेटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। यानी कि हम लोग हमेशा प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन समझते थे, बट समटाइम दिस इज ऑल्सो द ट्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार प्रोवाइजो क्लॉज इस टाइप से यूज होता है। सेक्शन 13 और सेक्शन 61 का मैंने एग्जांपल दिया था। सेक्शन 13 की पहली लाइन ये है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 अ कंपनी मे ऑल्टर इट्स एमओए बाय पासिंग एसआर। ओके, और 61 में लिखा हुआ है ऑल्टरेशन कैन बी डन बाय ओआर, यानी कि नॉर्मली ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में एसआर लगता है, बट ये एक सेविंग क्लॉज है कि एक सेक्शन में ओआर वाला अधिकार जो दिया हुआ है उसको सेव कर रहा है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, ये एग्जाम्पल भी फिर आपको कई बार समझाने के लिए देना पड़ता है। ओके, वेरी गुड। Explanation explains the meaning of the words used in the section layout. Schedules are appended to the act, but schedules can never override the act. जैसे Companies Act में 7 schedules है। Notwithstanding, मतलब कि in spite of the fact what is written in that section, this section will prevail over other sections. यानी कि ये overriding effect है over other sections. Notwithstanding anything contained in the entire act, पूरे act में कहीं भी कुछ लिखा हो, यहां जो लिखा है वो ज्यादा सुप्रीम है। Notwithstanding contained in any other law, चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, यहां जो लिखा है वो सुप्रीम है। मतलब overriding effect over section, over entire act, and some over is a very important word, and all other laws भी होता है। सर सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव क्या करता है? किसी और को ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। जैसे नॉटविथस्टैंडिंग क्या करता है? ये सेक्शन सुप्रीम है बाकियों के ऊपर। सब्जेक्ट टू क्या करता है? वो दूसरे को सुप्रीम बनाता है। मतलब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एओए एंड एमओए कैन बी ऑल्टर्ड, यानी कि एक्ट में कहीं कुछ और लिखा है तो उस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। इट गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर सेक्शंस, टीओ। जैसे नॉटविथस्टैंडिंग में वर्ड क्या था? इट गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर सेक्शंस। यहां पर वर्ड क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर सेक्शंस। वेरी गुड। हमने फिर देखा एक्सटर्नल एड्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एड्स? दैट अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूट वी लुक एट अदर एड्स टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट। पहला लाइन हिस्टोरिकल सेटिंग, मैंने कंपनीज एक्ट 2013 के केस के बारे में बताया, जीएसटी, आईबीसी कोड, द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, ऑल दीज थिंग्स। कई बार हमें दूसरे एक्ट्स को रेफर करना पड़ता है। मैंने कई एग्जांपल्स दिया था, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट के बारे में बताया। मैंने कंपटीशन एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बताया था कि कंपटीशन एक्ट में कई बार लिखा रहता है गुड्स, और लिखा रहता है गुड्स मींस गुड्स डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जब हम कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं, मुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के गुड्स की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा नहीं है मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं, बट हमें वो चीज कहां से पता चलता है? कंपनीज एक्ट से पता चलता है कि वहां पर मैक्सिमम पार्टनर्स इतने इतने हैं। कई बार हम रिपील्ड एक्ट को भी रेफर करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। डिक्शनरी डेफिनेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग, कि कोई वर्ड जो एक्ट में डिफाइन नहीं, हमें उसकी डिक्शनरी मीनिंग को देखना चाहिए। बट जब डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं ना, हमें डिक्शनरी में भी कई मीनिंग्स होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है वर्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच कॉन्टेक्स्ट इट इज यूज। और अगर कोई कोर्ट के जजमेंट्स आ गए हैं कुछ शब्द के बारे में, तो कोर्ट के जजमेंट्स आने के बाद वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कोर्ट के जजमेंट्स उन शब्दों को और ग्रेटर वेट भी दे देते हैं। ये भी आंसर में लिखना पड़ेगा। यानी कॉन्टेक्स्ट
जुडिशियल डिसीजंस गिविंग इंपॉर्टेंस टू डिक्शनरी डेफिनेशंस, और कई बार हमें टेक्निकल डिक्शनरीज देखना पड़ता है फॉर द टेक्निकल टर्म्स लाइक वेजिटेबल्स एटसेट्रा. यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, ऑफ कोर्स दे बाइंड, बट इंडियन डिसीजंस बाइंड अस मोर. कई बार कमिटी के रिकमेंडेशन, हर एक्ट के पीछे एक एक्सपर्ट कमिटी होती है, एक्सपर्ट कमिटी के वर्किंग्स और रिकमेंडेशंस को भी हम कई बार पढ़ते हैं टू फाइंड आउट द रियल इंटेंशन ऑफ लॉ. जैसे मैंने जे ईरानी कमिटी का एग्जाम्पल लिया था. ओके, तो ये हो गए सारे हमारे एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ टू इंटरप्रेट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. फुल पेज करो. पर हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ा था कि हमें डीड एज अ होल पढ़ना चाहिए, दो क्लॉजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अर्लियर क्लॉज प्रिवेल करेगा. वर्ड शुड हैव द सेम मीनिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमने यहां पे पढ़े थे. तो ये पेशेंस के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ये नहीं जानते थे, कोई अगर इसको व्यू कर रहा हो, एंड मुझे मैसेज जरूर करिएगा कि ये क्लास कैसा लगा. ऐसे यूट्यूब में और प्लेलिस्ट कॉलम में क्लासेस हैं, तो यू शुड वॉच इट. नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट, पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसके ऊपर भी बहुत मजाकिया एग्जाम्पल बनाया था कि दो लवर्स के बीच में किस तरह उनका प्यार खत्म हो गया. यहां पर यह भी आपको दिखाई देगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड मेनी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. हमने यहां पर किए थे. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करने का फायदा क्या होता है लेआउट, कि we read the question, we understood, पर एग्जाम में क्या क्या वर्ड्स आंसर में मिस नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, all things were done. एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमने किया था ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जिसको लिटरल बोलते हैं, और एक्सेप्शन टू ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन व्हेन द लेटर ऑफ लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ एम्बिग्विटी, इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस. तो हमें ट्रू इंटेंशन देखने के लिए कोर्ट्स को दे हैव टू ट्रैवल बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ. इसके लिए मैंने एक आपको टैबुलर डिफरेंस भी बना दिया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ग्रामेटिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बीच में. फुल पेज करो. यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन ट्राई टू नोट इट डाउन. ऐसे सब पढ़ा हुआ है पर थोड़ा सा सजा दिया था दैट डिफरेंस बिटवीन ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये क्या क्या चीजों पर फोकस करते हैं. बेसिकली यहां पर 4 पॉइंट्स नजर आ रहे थे ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल के बीच में. There are 4 points which we should refer. Is it fine? Check कर लो please. Check कर लीजिए, लिख लीजिएगा. So this will help you to compress. This will help you to score better. समझते सब हैं पर लिख नहीं पाते because after revising they don't practice past exam questions. मैंने बहुत सारे questions किए थे, ये uncommon questions, ताकि कुछ भी मेहनत आपका नहीं हो. सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी इसमें आपको दिखाया है, और जो लिंक डाल रहा हूं उसमें ये मार्क्ड पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा. किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये नॉकिस्टर कॉकस इज अ वाइडर रूल देन एजुस्डिम जनरस, रादर एजुस्डिम जनरस इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉकिस्टर कॉकस. इस टाइप के स्टेटमेंट्स मल्टीपल चॉइस में कई बार दे देंगे, तो अगर नहीं प्रैक्टिस किया होगा, आप अंदर से नहीं पढ़े होंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्राफ्ट. और ये जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं ना, कई बार कोई वर्ड्स होते हैं, वो सेक्शन वाले वर्ड्स, वो एक्ट के वर्ड्स एक्सप्लेनेशन के अंदर एक्सप्लेन होते हैं, बट ये चीज इन्होंने बताया एक्सप्लेनेशन में भी एडेड टू इंक्लूड समथिंग, ऑल्सो एक्सक्लूड समथिंग. कई डेफिनेशंस में लिखा रहता है दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड. तो ये सब चीज लाइंस एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं कई बार, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो ये मेरे मार्क्ड पीडीएफ इस यूट्यूब लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल ड्राइव लिंक दिया हुआ है, जरूर फॉलो करना, अदरवाइज अच्छा नहीं स्कोर कर पाओगे. अगर सिर्फ रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट आफ्टर रीडिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने लेआउट सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस किए. एक अजीब क्वेश्चन आया हुआ था, preamble do not override the plain provisions of the act, comment with suitable example. तो हमने यहाँ पर वो हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन और हिंदू वाले एग्जाम्पल को भी समझाया है. पॉज करके इस गूगल ड्राइव लिंक, वो जो नोट्स के गूगल ड्राइव फॉर्म दिए हुए हैं, उसको भी आप ले लीजिएगा. और ऐसे प्लेलिस्ट में बहुत सारे और भी रिविजन्स हैं. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट. मैं पहले यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, पढ़ाते हुए 22 साल हो गए, 21-22 साल हो गए हैं, बट अब लास्ट 4 months से कीपिंग द ट्रेंड इनटू, कि अभी के ट्रेंड क्या है, into consideration, I have started posting revisions on YouTube. So many do not know about my revisions, but if you feel it's good, you can share with your friends. मेरा फोन नंबर आप जानते होंगे 9830259002. अगर बेनिफिट हुआ हो इस रिविजन क्लास से, प्लीज मोटिवेट मी टू मेक मोर सच रिविजन क्लासेस. थैंक यू.
रुकिए रुकिए रुकिए, थैंक यू नहीं, एक चीज और बच गई है इसमें। इस चैप्टर से कई बार गंदे डेफिनेशंस आते हैं। डिफाइन डॉक्यूमेंट, डिफाइन इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, ये मिस मत करना। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करते हुए दे हैव डिफाइंड डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर expressed upon any substance by means of letters, figures or marks for the purpose of recording that matter. मैंने कई एग्जाम्पल्स यहां पे लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिंट आउट ऑफ ईमेल्स, ऑल दीज आर, बिल्डिंग मैप, दिख रहा है आपको? तो प्रैक्टिस करना होगा। उसी तरह इंस्ट्रूमेंट को इंडियन स्टैम्प एक्ट के अनुसार डिफाइन किया गया। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड, एक्सटिंग्विश्ड, ट्रांसफर्ड। तो ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट एक चीज और था यहां पर कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर रूल्स, दीज आर नॉन स्टैट्यूटरी एड्स जो हम लोग लॉ समझने में यूज करते हैं। और कई बार कुछ एक्ट्स होते हैं जो हमें इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, जो आप देखोगे आने वाले दिनों में। जनरल क्लॉजेस एक्ट, इट इज एन एक्ट विच इज हेल्पिंग अस इन इंटरप्रेटिंग। क्योंकि जो हम इंटरप्रेटिव स्टैट्यूट के रूल्स पढ़ रहे थे, दे वर नॉट एक्ट्स, दीज वर नॉन स्टैट्यूटरी एड्स। और एक्ट्स भी कई बार हमें हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये जो बोरिंग क्वेश्चंस हैं, इनको भी हमें उतना ही ध्यान देकर पढ़ना है। उसी तरह एक था डॉक्ट्रिनल एंड लीगल क्लासिफिकेशन, ये भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस कंप्लीट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। थैंक यू।